Assalamu alaikum everyone, welcome back to another video, welcome back to another vlog. अभी जो हैं बज रहे हैं सुबह के 6 and it is literally pitch dark outside. कोई भी नहीं उठा हुआ और obviously कोई भी नहीं उठा हुआ but it's so dark and मुझे जो है 7:30 बजे निकलना है for my class at Harley and 7:30 बजे भी सूरज नहीं निकला होगा but उससे पहले right now I need to take this guy for a walk. Normally मैं इसको 10 बजे लेके जाती हूँ, so how I'm going to convince him to come for a walk with me 4 hours before his normal time, I have no idea. Probably इसको trick वगैरह करके, but honestly like it's really weird, but रात से ज़्यादा dark लग रहा है मुझे अभी बाहर, या maybe like I'm not used to it, but let's see, कुछ करके लेके जाते हैं. और फिर कॉफ़ी तो मैंने अपनी रात में ही espresso shot बना ली थी, अपने स्टैनली में बर्फ़ डाल के रख ली थी, just so like I'm really quick with the whole thing. And then I think I will need a second coffee as well, but जहाँ पे हार्ली अकेडमी है on Threadneedle Street, जहाँ पे रॉयल एक्सचेंज है, वहाँ पे सारे ऑफिसेस वगैरह हैं, तो उसके पास काफ़ी अच्छी कॉफ़ी शॉप्स हैं. So I'm really excited to try some new coffee. तो ज़रा चलते हैं, ब्रूनो को वॉक पे लेके चलते हैं. निकल गए हैं हम लोग वॉक के लिए. Let's go. Guys, so I was just about to get ready और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ कुछ बहुत exciting शेयर करूँ. So a couple of days ago मैंने अपनी स्टोरी पे शेयर किया था कि I have a very affordable alternative to the Dyson Airwrap because मुझे इतने ज़्यादा मैसेज आते हैं रोज़ के Dyson Airwrap जो है वो बहुत expensive है. Obviously it's around £500 and if you have a reliable alternative to it तो बताएं. So I ordered this from one of माई फेवरेट ब्रांड्स, ठीक है ना. मैं अभी नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाह रही बिकॉज आई वॉन्ट टू टेस्ट इट आउट थरली फर्स्ट बिफोर आई रिकमेंड इट टू एनीवन. पर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ थोड़े से फर्स्ट इंप्रेशंस करूँ. सो दिस इज़ व्हाट द बॉक्स लुक्स लाइक. सही है, इट इज़ अ सुपर अमेजिंग बॉक्स. आई इवन गॉट लाइक माई इनिशियल्स इंग्रेव्ड इन इट. वेरी क्यूट, बहुत अच्छी क्वालिटी लग रही है. This is what it looks like from the inside. First impressions, it looks amazing. ठीक है, I can see that it has the roller attachment. उसी तरीके से right left ठीक है करने वाला. I do feel कि ये थोड़ा सा जो है difficult to twist है, but again like it is less than 5 times the price. We have dryer attachment, ठीक है ना. Then we have the device itself. The switch is again a lot less bulkier than the Airwrap. Smoothing brush, ठीक है ना. We have the roller brush. अच्छे bristles भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इसके. We have another smoothing brush. And then we have a thicker roller brush which is very cool because I think Dyson में जो है सिर्फ एक ये वाला आता है. So proper जो आपके salon level blow dries होते हैं, या जैसे आपका Revlon वाला होता है उसमें ये वाला होता है. So I'm very excited to try it out. अभी मेरे बाल जो हैं बहुत off हो रहे हैं, so I'm just going to do like a quick impression before I go and take a shower because I know कि shower लेने के बाद तो I will literally be rushing and I will not have time to sort of do this. We're gonna start off by trying the roller thingy. ठीक है ना, let's turn it on. अभी हमारी सही है. That is very cool, guys. The curl is like just as bouncy and perfect
I do feel कि जो इसके buttons हैं वो थोड़े से ज़्यादा difficult है to maneuver because the Dyson has like a switch thingy. But obviously अगर आप एक device use करते हैं तो आप you get the hang of it. मैंने जब अपना Dyson switch किया था तो मेरे लिए वो भी बड़ा मुश्किल था उसको maneuver करना because उस पे भी buttons थोड़े different है, but now I have the hang of it and like मुझे कोई मुश्किल नहीं होती, so I don't think this is like a very big issue. But I am very impressed, guys. Like look at that. It's a beautiful curl. और अब ज़रा first impression करते हैं. So you have to like push this out. Came out quite easily. This is another brush that I really use on my Dyson, so we're going to test this out now. So this is what my front looks like. ये वही वाला part है जो अभी तक curl हुआ है, which is quite impressive because अगर आप Dyson से curl करके फौरन अपने fingers run कर लें तो it does not stay. But I think this is very impressive, like very cool. I cannot wait to try this out more and give you guys a full review. अभी मैं नाम नहीं disclose करी because I do want to try it out more. I want to see सारे मुझे उसकी क्या कहते हैं अटैचमेंट्स जो हैं वो ट्राई करके आप लोगों को बताना है ताकि मैं एक प्रॉपर डिटेल रिव्यू दे सकूं. आई वांट टू ट्राई आउट द स्मूथनिंग ब्रश बिकॉज दैट इज आल्सो अनदर वन आई रियली यूज. बट लाइक लुक एट दिस गाइस, दिस इज क्रेजी. It is insane. I love it. So stay tuned for my review, guys. This is something that I'm really excited to share with all of you because of the amount of questions that I get. I feel like this is going to be a good one. I have a very good feeling about this. Challenge, guys. I am ready. अब ज़रा ब्रूनो साहब को देते हैं खाना और निकलते हैं. अपनी कॉफ़ी भी ज़रा साथ लेते हैं. I will drink it. Ouch. I will drink it on the tube. ये जो है मेरा फुल लुक है. I am wearing a navy blue and grey pants. मुझे जो है कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा पसंद है. Like it is one of my favorite combinations ever. Navy blue and khaki and navy blue and grey. And both my shirt and pants unique look हैं. ऐसा हो गया ब्रूनो का खाना. Stay. तो खा लो. सब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी कॉफ़ी की एफिशिएंसी. सो ये अपने स्टैंड पर बर्फ़ डाल के रखी हुई है. ओके. Then I have these espresso shots ready. मैंने उसमें डाला दूध and then आज I'm thinking of making French vanilla. And बस हमारी कॉफ़ी इज़ रेडी. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे टाइम से जो है मैं तैयार हो गई हूँ. इट इज़ 7:25 राइट नाउ. और बस मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा टाइम से पहले ही निकल जाऊँ, जल्दी ही पहुँच जाऊँगी थोड़ा. Guys, I have just walked out of the station and यहाँ से जो है 9 minutes की walk है. So I am perfectly on time. It is 8:48 और मुझे 9 बजे पहुँचना था. So I shall be there on time. गाइज़, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ज़रा दिखाऊं हार्ली एकेडमी. दिस इज़ वेयर वी गेट आवर लेक्चर्स. एंड अभी जो है लंच ब्रेक हुआ है, सो आई एम जस्ट गोना गो आउट एंड गेट सम लंच. गाइज़, जो एरिया है जहाँ पे हार्ली एकेडमी है, इट इज़ सो नाइस. लाइक सिर्फ बाहर वॉक करके इतना मज़ा आता है. फॉर लंच टुडे आई हैव डिसाइडेड टू हैव शेक शैक. लंच में मैं खा रही हूँ चीज़ फ्राइज एंड बर्गर. आई नो दिस इज़ अ लॉट ऑफ कैलोरी बट वी स्टिल हैव अबाउट 6 hours टू गो एंड आई नीड द एनर्जी. टाइम फॉर माई सेकेंड राउंड ऑफ कॉफ़ी. ये हार्ली के पास ही एक जगह है, रॉसलिन कॉफ़ी, विच आई हैव हर्ड रियली गुड थिंग्स अबाउट. सो गाइज, a little tour of the upper area. ये वेटिंग एरिया है, यहाँ पे कॉफ़ी मशीन है एंड देन वहाँ पे टॉयलेट्स हैं.
दिस इज़ जहाँ पे आप वेट कर सकते हैं और जो कस्टमर्स होते हैं, पेशेंट्स, वो वेट करते हैं. देन वी हैव अ लिटिल किचनएट एंड देन वी हैव दिस लिटिल वाटर डिस्पेंसर जिस पे लिखा हुआ तो है स्पार्कलिंग वाटर, बट आई डोंट थिंक इसमें से, या आई थिंक सिर्फ नॉर्मल वाटर ही आप निकाल सकते हैं, स्पार्कलिंग नहीं चल रहा. सो वी आर जस्ट गोना डू दैट. सो कॉम्प्लिकेटेड. वी आर जस्ट गोना डू ठंडा पानी. चले जी गाइस, आई एम डन विद माई क्लास एंड मगरिब भी हो गई है. थोड़ा पहले ही फारिग हो गए. इट्स अबाउट 5:30ish, 6 o'clock नहीं हुए. सो नाउ आई एम जस्ट हेडिंग होम. चले जी गाइस, आई एम होम और ये ब्रूनो का खाना आया हुआ है. साथ में जो है हमारे घर के पास एक मोमोज़ की दुकान है जिनकी मैं कब से लैम मोमोज़ ट्राई करना चाह रही थी ना, कुडंट. सो टुडे आई गॉट देयर लैम मोमोज़ एंड चिकन चाउमिन. घर जाके ज़रा ट्राई करते हैं. सॉरी गाइस, बहुत भूख लगी हुई थी तो खाना वाना खा के याद आया कि आप लोगों को रिव्यू देना था. सो लैम मोमोज जो थे वो तो बहुत ज़बरदस्त मज़े के थे. चाउमिन में बहुत ज़्यादा मिर्चें थी, लाइक बर्दाश्त से बाहर. एंड शी आस्क्ड मी कि स्पाइसी. मैंने बोला मीडियम. बोलती मीडियम. मैंने बोला यस. वो तो 2 बाइट नहीं खाए जा रहे. ये मैडम जो है ना, ये मैडम जो है ना, पता नहीं कब से खाए जा रही हैं. बहुत मज़े का, बहुत ही मज़े का है. आंतें सड़ गई होंगी इसकी, अब तक इतनी मिर्चें खाती है. बट द लैम मोमोज वर रियली नाइस. चलिए जी गाइस, आई वाज जस्ट अबाउट टू गो फ्रेशन अप, चेंज, नमाज़ पढ़ने के लिए. फिर उसके बाद मुझे ब्रूनो को वॉक पे लेके जाना है. फिर उसके बाद दिन में जो है मेरा एक पार्सल आया था जो कि नबिया मूवी देखने के लिए गई हुई थी. सो शी नो वन वाज होम टू कलेक्ट इट. तो वो एक कन्वीनियंस स्टोर पे हमारे घर के पास ड्रॉप हो गया. तो आई हैव टू गो गेट दैट एज वेल. सुपर टायर्ड, बट इंशाल्लाह हो जाएगा सब. तो बिफोर आई वाज अबाउट टू गो एंड फ्रेशन अप, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करूँ जो कि मैंने आज सीखी अपनी ट्रेनिंग में, विच वॉज अ रियल आई ओपनर फॉर मी. टर्न्स आउट दैट आई हैड सम इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने बहुत सारे लोगों के साथ शेयर भी की थी. तो मैंने सोचा कि मैं मेरी क्योंकि रेक्टिफाई हुई है तो सबको बताती चलूँ. सो हम लोगों का जो यूवी बेसिकली सूरज होता है, उसमें से 3 किस्म की रेज निकलती हैं जो कि होती हैं UVA, UVB एंड UVC. UVA एंड UVB वो हमारे लिए रेलिवेंट होती हैं बिकॉज UVC जो है वो ऑलरेडी ओजोन लेयर से फिल्टर होकर आती है. सो लाइक इट डजंट रियली अफेक्ट अस इन एनी वे. UVA and UVB are the rays that penetrate into the skin. They go into the deeper layer of the skin and वो कराते हैं sunburn, वो कराते हैं hyperpigmentation, वो कराते हैं aging, skin cancers, a whole lot of different things. ठीक है. So मैंने हमेशा से आप लोगों ने सुना होगा कि आप लोगों को बताया था कि विंटर्स में जो है UV इंडेक्स बहुत लो होता है, और एटलीस्ट इन UK, नॉट इन पाकिस्तान. आप UV इंडेक्स अपने वेदर ऐप पे चेक करें, और अगर UV इंडेक्स लो है तो यू डोंट नीड सनस्क्रीन व्हाइल यू आर गोइंग आउट. टर्न्स आउट दैट आई वॉज वेरी रॉन्ग. UV इंडेक्स जो आपका वेदर ऐप पे होता है, दैट इज़ ओनली एन इंडिकेशन ऑफ योर UVB रेज. इट डज नॉट अकाउंट फॉर UVA एट ऑल. ठीक है. अब वेयर डिड दिस होल कंसेंसस कम फ्रॉम? हमारी जो स्किन टाइप्स होती हैं बेस्ड ऑन आवर कलर एंड आवर कम्प्लेक्शन, डर्मेटोलॉजी में हम एक जनरलाइज्ड स्केल यूज़ करते हैं. थोड़ा सा फ्लॉड लगता है मुझे, बट इट इज़ लाइक अ बेसिस ऑफ sort of trying to see who is what skin type, और उस बेसिस पे हमारी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स और डिसीजंस होते हैं, विच इज़ कॉल्ड द फिट्जपैट्रिक स्केल. ठीक है. उसमें 6 टाइप्स होते हैं जिसमें से 1 बिल्कुल आपके बहुत ज़्यादा फेयर लोग होते हैं और क्या कहते हैं लाइक पेल वाले जिनकी ब्लू आइज़ होती हैं, एंड देन 6 इज़ आर पीपल ऑफ कलर. ठीक है. हम आई थिंक समवेयर अराउंड 4 to 6 के बीच में आते हैं. ठीक है. एशियन स्किन टाइप जो होती है. सो टर्न्स आउट जो हमारे फिट्जपैट्रिक स्किन टाइप 1 और 2 होते हैं वो हमेशा से बर्न करते हैं, बट वो कभी भी टैन नहीं होते. ठीक है. उनमें पिगमेंटेशन का चांस बहुत कम होता है बिकॉज दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ मेलानिन लाइक वी डू. सो दिस इज़ रेलिवेंट टू दैम बिकॉज UVB इज़ व्हाट कॉजेज आपके स्किन बर्न्स. एंड क्योंकि विंटर्स में UVB नहीं होता तो वो इसलिए दे कैन गेट अवे विद स्किपिंग सनस्क्रीन. Why we can't get away with skipping sunscreen is because Asian skin types होते हैं, we have melanin, we are more prone to hyperpigmentation. ठीक है. So UVA जो आपका होता है वो सारा साल होता है. वो आपकी खिड़कियों से पेनिट्रेट करता है, वो आपकी लाइट्स में होता है, वो आपकी क्लाउडी डेज पे होता है, सारा साल विंटर्स हर जगह होता है. एंड दैट इज़ व्हाट कॉजेज हाइपरपिगमेंटेशन, इट इज़ व्हाट कॉजेज एजिंग, इट इज़ व्हाट कॉजेज अ लॉट ऑफ पिगमेंटरी डिसऑर्डर्स. ठीक है. And you need sunscreen to prevent from UVA and UVB both even in the winters. So ये मेरा बबल जो है बहुत बड़ा burst हुआ. मैंने आज एक skin analysis कराया which was a part of our training. So all of us got to do it, जितने भी students थे. And turns out that I have very deep pigmentation as well. It doesn't show. ये तो खैर ये वाला तो मेरा बहुत ही obvious आया था और ये इतना deep है कि this is somewhat irreversible ही लग रहा था.
For those of you that don't know the story of this निशान that I have here, मैं जब छोटी थी तो मैंने एक अंडे का छिलका जो है अंडा जो है, एक मैं डॉलन्स का ऐड देखती थी जिसमें एक मुर्गी आती है और वो अंडा माइक्रोवेव में रखती है और उसके बाद निकालती है और अंडे में से ना चूज़ा निकल जाता है। तो मुझे बड़ा शौक होता था कि मुझे भी चूज़ा चाहिए, मुझे चूज़ों का लाइक पेट्स का बहुत शौक होता है। तो मैंने भी जाके अंडा जो है माइक्रोवेव में रख दिया। अब जब माइक्रोवेव मैंने पूरा फुल चला के निकाला तो अंडा वैसे का वैसे पड़ा होता। मैंने बोला मे बी आई शुड लाइक स्मैश इट विद अ चम्मच, तो फिर उसमें से चूज़ा निकलेगा। मैंने उस पर मारा चम्मच, वो फट के पूरा मेरे मुंह पे आया। एंड दिस इज़ वेयर दैट हॉट शेल burnt me and this never went away. ठीक है, this is like really deep pigmentation. So maybe with stuff like chemical peels and like micro needling शायद चला जाए। मैंने आज तक कभी भी जो है कोई aesthetic treatment नहीं कराया, but I intend on starting now. So we will see what happens with that. तो खैर मेरे skin analysis पे बहुत deep pigmentation थी, which means कि वो at some point बाहर आ सकती है unless I take measures to stop it now. What measures can you take to stop pigmentation, to prevent pigmentation, to treat pigmentation? आप अपने जो हैं आपके जो antioxidants होते हैं, एक स्किन केयर की वेराइटी होती है which is called tyrosinase inhibitors. ठीक है, you can google it, you can chat GPT it, but normally आपके वो होते हैं विटामिन सी, आपकी एजिलिक एसिड, आपका अल्फा आर्ब्यूटेन, आपकी क्या कहते हैं हाइड्रोक्विनोन्स जो होते हैं, जो बेसिकली एंटी मलेरियल्स होते हैं, बट देन दे आर वेरी पॉपुलर इन स्किन केयर, जो कि आप टॉपिकली लगा सकते हैं। Just read up about it because there are some things like जैसे quinones जो होते हैं, you need to use them with caution because just read up about it. ठीक है, so आप इन सारी like my personal favorite is azelaic acid, तो आप इन चीज़ों से जो है prevent और treat कर सकते हैं pigmentation, and then obviously like always using sunscreen even in winters. तो this was a real eye opener for me. मैं बहुत disappointed थी myself that I didn't do proper research. I mean, I heard a lot of credible people saying it, but then I have now learned that dermatologists around the world, they speak for the region they are specific to. अगर कोई अमेरिकन डर्माटोलॉजिस्ट है तो वो अमेरिका स्पेसिफिक बात करेगा, अगर कोई ब्रिटिश है तो वो ब्रिटिश स्पेसिफिक बात करेगा। और मैं इन्हीं दोनों कंट्रीज़ के डर्माटोलॉजिस्ट को ज़्यादा फॉलो करती थी, ज़्यादा उनके जर्नल्स पढ़ती थी। सो दैट्स वेयर लाइक मोस्ट ऑफ माई नॉलेज केम फ्रॉम। एंड नाउ आई हैव रियलाइज दैट वन एवर आई सी सच इन्फॉर्मेशन, मुझे अपनी एशियन स्किन टाइप पे भी रिसर्च करनी चाहिए। बट या तो ये मेरी एक चीज़ करेक्ट हुई थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ सो दैट यू गाइज कैन ऑल्सो टेक मेजर्स टू प्रिवेंट इट राइट नाउ। सन एक्सपोजर एंड सन डैमेज इज़ द नंबर 1 कॉज ऑफ एजिंग। ठीक है, तो आपके फाइन लाइंस और जो रिंकल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है उसमें आपका सन एक्सपोजर, एंड दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल विद सनस्क्रीन। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो हैं आपके, जो आप नहीं कंट्रोल कर सकते, वो तो एक डिफरेंट चीज़ है ना, लाइक आपका जेनेटिक्स और वो सारी चीज़ें, बट एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में नंबर 1 कॉज आपका सन एक्सपोजर होता है, जो कि आप कंट्रोल कर सकते हैं। सो या गाइज, यूज़ योर सनस्क्रीन, मेक श्योर इट्स अ UVA एंड UVB, इट हैज़ UVA एंड UVB प्रोटेक्शन। आपका जो SPF का नंबर होता है ना, वो होता है मेजर आपके UVB का, और PA++++ जो आपने अक्सर सनस्क्रीन पे देखा होगा, वो होता है आपका मेजर UVA का। सही है, सो जस्ट मेक श्योर दैट आप देखें एंड अप्रोप्रिएट सनस्क्रीन यूज़ करें। एनीथिंग अबव 30 इज़ ग्रेट, 50 इज़ अमेजिंग, उससे ज़्यादा थोड़ा सा अननेसेसरी होता है। बट आई मीन बेसिकली the higher the SPF does not mean that it will give you more protection level दोनों का सेम होता है, but the higher the SPF it can give you protection for a longer period of time. So हो सकता है कि हो सकता है कि SPF 30 आपको 2 घंटे के लिए प्रोटेक्ट कर ले विदाउट डायरेक्ट सन एक्सपोजर, एंड SPF 50 हो सकता है आपको 3 घंटे के लिए प्रोटेक्ट कर ले विदाउट डायरेक्ट सन एक्सपोजर। अगेन दिस इज इन रेफरेंस टू नॉट बीइंग इन डायरेक्ट सन। अगर आपका डायरेक्ट सन एक्सपोजर, आप सूरज के नीचे खड़े होते हैं, यू हैव टू रीअप्लाई योर सनस्क्रीन every 2 hours। ठीक है ना, अगर आपने स्विमिंग की, अगर आपको बहुत पसीना आता है, यू हैव टू रीअप्लाई योर सनस्क्रीन every 2 hours। देयर इज नो सच थिंग एज अ वाटर प्रूफ सनस्क्रीन, देयर आर ओनली वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन। विच मीन्स थोड़े बहुत अगर स्प्लैशेस आपके मुंह पे पड़ गए तो ठीक है, वाटर प्रूफ कोई सनस्क्रीन नहीं होती। ठीक है, देयर इज आजकल मैंने देखा था कि एक ब्रांड था, इसका मैं नाम नहीं लेना चाहती, बट उन्होंने अपने सनस्क्रीन की वेबसाइट मैंने पढ़ी थी, उस पर एडवर्टाइज किया हुआ था कि डू नॉट यूज 2 finger lengths ऑफ सनस्क्रीन, ओनली अ pea-sized अमाउंट इज इनफ। एंड आई वॉन्टेड टू लाइक ब्रेक समवन्स फेस, बिकॉज मतलब आज तक ब्रांड्स लाइक ला रोश पोसे, जिनकी अपनी लैब्स हैं, जिनकी ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च होती है डर्माटोलॉजी में, वो आज तक कोई ऐसी सनस्क्रीन नहीं बना सके जो कि आपको रिक्वायर्ड अमाउंट ना यूज़ करनी हो, विच इज़ 2 mg per centimeter square, विच इज़ रफली 2 to 3 finger lengths ऑफ सनस्क्रीन। वो नहीं बना सके तो पाकिस्तानी ब्रांड ने कहाँ से बना लिया, एंड अगर बनाई है तो वाई इज़न इट फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर दिस ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेटिव रिसर्च। सो एनी वन दैट टेल्स यू
कि आपको पीस साइज अमाउंट लगाना है, एनी वन दैट टेल्स यू कि आपको आपकी सनस्क्रीन आपको डायरेक्ट सन एक्सपोजर में पूरा दिन प्रोटेक्ट करेगी, एनी वन दैट टेल्स यू कि आपको 2 फिंगर लेंस की ज़रूरत नहीं है, एनी वन दैट टेल्स यू कि आपकी सनस्क्रीन जो है वो 100% यूवी रेडिएशन ब्लॉक कर देगी, एंड एनी वन दैट टेल्स यू दैट देयर सनस्क्रीन इज़ वाटर प्रूफ, रन अवे फ्रॉम देम. ठीक है, यू नो बेटर नाउ. डू नॉट बाय फ्रॉम देम because they are not credible and they are just trying to scam you. So thank you for coming to my TED Talk. I am sincerely very sorry to the people that I misguided. I am very, very embarrassed, but I am here to make this right. Inshallah, inshallah, it is not late. You can rectify this just like I will, and you can make things right. चलिए जी गाइज, अब ज़रा बनाना शुरू करते हैं खाना. I am in a mood to make something super. I am in the mood to make something super quick. तो मैं बना रही हूँ वाइट कढ़ाई और पनीर रेशमी कढ़ाई हांडी. तो ज़रा शुरू करते हैं. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ बाय टेकिंग आर बोनलेस चिकन थाइज, और इसमें जो है मैंने सॉटे कर रही हूँ विद सम अदरक लहसुन का पेस्ट, एंड थोड़ा सा मैंने सिरका डाला बिकॉज आई फील लाइक समटाइम्स थाई कैन बी विद स्मेली. फिर उसमें जो है मैंने हमारे मसाले और हरी मिर्चें डाली हैं. मसाले में मैंने डाला है नमक, काली मिर्च, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला एंड वाइट पेपर. एंड हरी मिर्चें जो है मैंने ढेर सारी काट के डाली. इस पॉइंट पे I'm just going to mix this very properly. I also added a little bit of दूध instead of water because I just feel like that adds a lot of richness to your paneer reshmi, white handi, whatever creamy handi that you're making. उसमें दूध जो है वो बहुत ज़बरदस्त लगता है. फिर उसको जो है पकाने के बाद मैंने उसमें डाला है प्याज. इस पॉइंट पे यू कैन ऑल्सो ऐड हरी शिमला मिर्च, वो बहुत ज़बरदस्त लगती है, बट आई डोंट हैव इट. आई ओनली हैव येलो एंड आई हैव रेड, एंड आई डोंट थिंक वो इतनी अच्छी लगेगी. तो मैंने डाला है प्याज, एंड नाउ जस्ट गोना सॉफ्टन दिस अ बिट. चलिए जी गाइस, उसके बाद जो है उसको सुखा के मैंने उसमें डाला क्रीम एंड चेडर चीज़, एंड फिर उसके बाद एंड में उसको कोयले का स्मोक दे दे. यू कैन स्किप दिस. नबिया जस्ट वांटेड लाइक बारबेक्यू टाइप वाइट हांडी, बहुत स्मोकी. तो गाइस, आई नो यू प्रॉब्ली थिंकिंग कि इस बंदी की बर्थडे और बर्थडे प्रेजेंट्स कब ख़त्म होंगे, बट हमना और उमर के जो गिफ्ट्स हैं वो टाइम से आए नहीं थे, वो अभी आए हैं. सो आई एम जस्ट अनबॉक्सिंग दैम. ज़रा आपके साथ ही करते हैं अनबॉक्सिंग. This is Hamna's. अंदर ये वाला दूध फेंको. नहीं रहने दो. एक घूंट है. घूंटना क्यों है? सुबह कॉफी में डल जाएगा घूंट भी. Fresh pen, also the personality to be required for. It's so pretty. Guys, ये जो brand है Stradberry, I've been wanting to try a bag of theirs for so long, क्योंकि इनकी लेदर की क्वालिटी की मैंने इतनी तारीफ सुनी है. नबियत कीमती देना जानो. बहुत ही प्यारा कलर है. Guys, this is the bag. This is the Stradberry East West bag, and ये I think इसका छोटे वाला साइज है. It is so pretty. आप इसको as a formal यूँ भी ले सकते हैं, and you can also take it cross body like this. It is so pretty. And guys, this is from Umar. These are the Axel Arigato sneakers, suede sneakers, और इसके साथ जो है you also get like these two laces, so you can put like different colored laces on both, which is very very cool. These are sort of like the New Balance और Miu Miu का एक collab आया था जो कि काफ़ी popular था, but then it was just sold out everywhere. तो ये हैं, and they are so nice. Love. Guys, मैंने जो है इनकी जूतों की लेसेस हाफ ब्राउन हाफ वाइट कर दी, एंड दे लुक सो क्यूट. लव देम. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू डे 3 ऑफ दिस व्लॉग.
अभी जो है दोपहर के 3:30 बज रहे हैं एंड इट इज़ अ वेरी वेरी सैड टाइम। जो घर की रौनक है, हमें हर वक्त हंसाने वाली, हमें एंटरटेनमेंट देने वाली इज गोइंग। Look at this diva. Oh my god. Oh my god. अंजा ने बोला था that this doesn't look nice. I don't like the blazer, but you're pulling it off well. MashaAllah. आप हैं इतनी प्यारी। ना जाओ। Are you coming soon? In 12 days. बोल दो पोनी को। शायद होला है मेरा बेबी। पोनी हमाल है। आओ बाहर। This is all the stuff that Nabia is traveling with. गिटार इसको हसन भाई ने दिया है, एक सूटकेस full of my stuff, एक सूटकेस full of her stuff, and a hand carry and a bag. Good luck, Bobo. दुबई में तो मुझे नहीं चेंज करना पड़ेगा। नहीं। अच्छा, वहाँ पे फोटो ले लूँगी। Perks of Pakistan. This is Nabiha. नीचे उधर एक सूटकेस है, यहाँ इसका गिटार केस है, डिग्गी में एक बड़ा बैग है। गुड लक। रोड के रास्ते पे जल्दी से हम लोगों ने पिट स्टॉप किया क्योंकि असलम अंकल ने जो है वो अपना पंजाब का सरसों का साग मंगवाया हुआ था जो उन्होंने बहुत पहले अपेरेंटली खाया था यहाँ साउथ हॉल में। सो वी गॉट 3 boxes पैक फॉर हिम। दे वर वेरी काइंड इनफ कि उन्होंने हमें बड़ा अच्छा सा डबल ट्रिपल रैप करके दिया। सो होपफुली दिस स्टेज सॉलिड एंड नबीहा मैडम जो है वो इसको कहीं गिराए ना तो फिर सब सेट है। आवर बेबी इज गोइंग दीवा, मिस दीवा। मतलब नबी स्वेट पैंट्स और शर्ट के साथ कोई ब्लेजर की तुक बनती है। स्टेट 2 बैग लिए हुए हैं, टिपिकल देसी। मतलब ताकि पासपोर्ट आपके लिए निकालना आसान हो, यहाँ इसमें आपको कोई कसर छोड़ी है आपने पासपोर्ट की भी। ओके गाइस, नबिया को एयरपोर्ट छोड़ते ही जो है मैं आई सेंसबरी टू डू सम ग्रोसरी। बिल्कुल फ्रिज जो है वो खाली हुआ तो आई थॉट थोड़ा स्टॉक अप करें बिफोर अली कम्स बैक। ग्रोसरी करने के बाद गाइस आई वाज सुपर हंग्री एंड आई केम टू शाही बिरयानी ऑन अ सोलो डेट टू हैव सम चिकन बिरयानी एंड ऑफ देयर बिरयानी हिट्स एवरी सिंगल स्पॉट। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू डे 3 और 4 ऑफ दिस व्लॉग। बहुत जो है घर में खामोशी एंड एम्प्टीनेस एंड सारी रौनक जो है वो चली गई है। ना अली है, ना मम्मा ईमान है, ना नबीहा है एंड इट फील्स रियली रियली एम्प्टी। बट इंशाल्लाह अली विल बी बैक सून। कल जो है आई डिडंट व्लॉग अ लॉट बिकॉज ऑनेस्टली आई वाज अ लिटिल डाउन एंड नबीहा को छोड़ के वापस आके ग्रोसरी करके बस मैंने बिरयानी खाई, बहुत ज़बरदस्त बिरयानी थी। एंड बस फिर उसके बाद जो है थोड़ी ग्रोसरी सेट की, थोड़ा शो देखा एंड आई स्लेप्ट। सो देयर ऑनेस्टली वाज़न्ट मच टू व्लॉग। आज जो है मुझे ढेर सारी पढ़ाई करनी है बिकॉज परसों जो है मेरी फिर से क्लास है। एंड सो एवरी क्लास दैट वी अटेंड फिजिकल, उससे पहले देयर इज़ लाइक अ टन ऑफ ई-लर्निंग दैट यू हैव टू डू जस्ट सो everyone is on the same page जिस दिन प्रैक्टिकल्स हों और क्लास हों। सो अभी जो है मैं ब्रूनो को वॉक पे लेके आई हूँ और वॉक से जा और इन साहब ने जो है कहीं से बॉल ढूंढ ली है एज़ ऑलवेज। सो नाउ ही इज़ नॉट लेटिंग इट गो एंड अभी वॉक करके जो है हम लोग जाएंगे घर। मैं कॉफ़ी पीऊँगी। आई हैव टू डू सम लॉन्ड्री। नॉर्मली अली ऑलवेज डज द लॉन्ड्री, सो आई हेट डूइंग लॉन्ड्री एंड अली लव्स डूइंग लॉन्ड्री बिकॉज पाकिस्तान में जो है ना अली को हमेशा से ये रिजर्वेशन होती थी कि हमारी जो हाउस हेल्प है वो उसके या तो कपड़े श्रिंक कर देते हैं, या तो उस पर रंग लगा देते हैं, या तो घुमा देते हैं, इधर उधर कर देते हैं, दूसरों की अलमारियों में डाल देते हैं। सो ही ऑलवेज प्रेफर डूइंग हिज लॉन्ड्री हिमसेल्फ विच इज़ वाई आई नेवर गॉट यूज टू डूइंग इट। बट काफ़ी कपड़े जमा हो गए तो आज मैं इंशाल्लाह लॉन्ड्री करूँगी एंड देन आई एम थिंकिंग फॉर डिनर ऑफ मेकिंग बीफ स्मैश बर्गर्स नबिया की याद में। नबिया की रेसिपीज़ और आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे फिर उसकी रेसिपी। तो अभी ज़रा लेट्स ब्रूनो को वॉक कराते हैं। रियली नाइस डे, इतनी सर्दी भी नहीं है, थोड़ा फॉगी है बट इट्स नॉट दैट कोल्ड। Guys, I have been standing and observing this squirrel for the past 10 minutes और ये इतनी क्यूट स्क्विरल है एंड weirdly ब्रूनो भी जो है बस उसको खड़े होके देख ही रहा है, लाइक वो कुछ कर नहीं रहा। Guys, I'm home super tired और ये मैंने कॉफ़ी बनाई super tired because this guy
ने बहुत तंग किया आज मुझे, बॉल ही नहीं छोड़ रहा था, बॉल ही नहीं छोड़ता, पता नहीं कौन सी गंदी बॉल पकड़ के बैठ गया था। जी आपसे बात कर रही हूँ मैं, आपसे बात कर रही हूँ, ऐसे पपी डॉग आइज के साथ मुझे नहीं देखो। नाउ टाइम फॉर माई मी टाइम एंड टू हैव कॉफ़ी एंड इंजॉय एंड चले जाओ अंदर भाई, डूम स्क्रॉल। जी गाइस, आई हैड माई कॉफ़ी एंड चिल्ड फॉर अ बिट, और अब जो है मुझे एक ब्रांड के लिए जो है शूट करना था, वीडियो बनानी थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ, बिकॉज द आउटफिट आई रियली लाइक। दे हैव नॉट पेड मी टू डू दिस ऑन यूट्यूब, बट मुझे बहुत अच्छा जो है आउटफिट लगा, स्टिचिंग लगी, फॉल लगी, सब कुछ बहुत ज़बरदस्त था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। दिस इज़ द आउटफिट, इट इज़ अ ब्यूटिफुल ग्रीन कलर, इट्स फ्रॉम a brand called Mahmer, MAHMAIR, एंड 3-piece सूट है। दुपट्टा भी जो है बहुत खूबसूरत है, इसके जो है यहाँ पे पूरा लाइक चारों तरफ इस तरह के फुन्ने, बोलती हूँ मैं तो, उनको फुन्ने लगे हुए हैं, एंड इट इज़ रियली प्रिटी। मैंने जो है बहुत पहले ही ऑर्डर किया था, सो दिस इज़ अ साइज़ मीडियम विच आई फील इज़ अ बिट लूज, बट इट लुक्स लाइक अ नाइस, वेरी नाइस ओवर साइज्ड फिट, सो आप लोग उस हिसाब से ऑर्डर कर लीजिएगा, बट आई थिंक it is stunning and beautiful, so I thought I'd share it with you guys. It's time to make dinner. ये जो है मैंने हमारा बीफ निकाला हुआ है ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। सॉस यहाँ बन रही है। फर्स्ट आई एम स्टार्टिंग ऑफ बाय कैरमलाइजिंग सम अनियंस। ठीक है, करना आपने ये है कि अगर आपने बहुत सारा पेशेंस है तो टेक्निकली कैरमलाइज अनियंस ये होते हैं कि आप उनको स्लो आंच पे जो है आधा घंटा पकने दें, सॉल्ट डाल के थोड़ा सा टिल दे लाइक properly like shrink and stuff, but I don't have the patience for that, so I just put a little brown sugar with the salt. ठीक है ना, ये हमारी बर्गर सॉस बन गई है। इसमें मैंने डाला है मेयोनीज, केचप, मस्टर्ड, पिकल जूस, नबीहा ने इसमें ग्रेट करके भी थोड़े पिकल्स डाले थे, एंड पेपरिका, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर एंड सॉल्ट थोड़ा सा। ठीक है, तो आप अमाउंट्स डाल के अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। I'm just going to see how this tastes and then adjust accordingly. Beef, I'm using 15% fat. Ideally, you should use like 20% fat. इससे बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। And जो पैटी है वो सिर्फ salt और pepper के साथ मैं season करूँगी। And for cheese, I'm using Gouda. ये जो है मेरा बर्गर तैयार है with caramelized onions, overloaded sauce, peri peri fries. क्या बात है। चलिए जी गाइस, दैट इज़ ऑल फ्रॉम द व्लॉग। मैं ज़रा बाहर आई थी थोड़ी ताज़ी हवा लेने के लिए, बिकॉज अंदर क्या कहते हैं, मैंने हीटिंग चलाई हुई थी एंड आई फील लाइक बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, सो आई थॉट थोड़ा बाहर आते हैं, थोड़ी हवा लेते हैं, थोड़ा नज़ारे करते हैं। सो आई होप यू गाइज एन्जॉय द व्लॉग, एंड इंशाल्लाह अगले व्लॉग में हमारे अली भी आ जाएगा, एंड थिंग्स आर गोइंग टू get very chaotic from then with the packing and the moving and the classes and all of that. So inshallah they're going to be chaotic but fun. तो आप लोगों से मुलाकात होती है एक नई वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।